मावसरी पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी बॉर्डर क्षेत्र में इस प्रकार के चेकिंग अभियान लगातार जारी रखे जाएंगे। વાવથરા જિલ્લાના માવસરી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવેલી આ માવસરી ચેકપોસ્ટ છે, જે રાજસ્થાન સરહદ સાથે જોડાયેલી છે અને અહીંના જે આપણા એસપી સાહેબ છે ચિંતન તેરૈયા સાહેબ, એમની સૂચના આધારે અહીંયા એક મજબૂત ચેકપોસ્ટ ઉપર બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। 4 પોલીસના જવાનો, 2 એસઆરપીના જવાનો અને જીઆરડી હોમગાર્ડના જવાનોથી અહીંયા સઘન વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈ દારૂની હેરાફેરી ના કરે, કોઈ અફીણ, પોસ્ટડોડા વગેરે જેવા કેફી દ્રવ્યોની હેરાફેરી ના કરી શકે। એના માટે આપણે એક મજબૂત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે અને અહીંયા સઘન આપ જુઓ છો અહીંયા બેરિકેડિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને સઘન વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને 31 સુધી આ કામગીરી એકદમ પૂરજોશમાં ચલાવવામાં આવી રહી છે। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। धानेरा से जोरा सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। 31 दिसंबर को लेकर बनासकांठा जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जिले में अंतर्राज्यीय सीमाओं को जोड़ने वाली सभी चेक पोस्टों पर पुलिस चेकिंग तेज कर दी गई है। वहीं जिले में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। बनासकांठा जिला राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जिला है। इसी कारण अंतर्राज्यीय सीमाओं से कई बार शराब, मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में आगामी 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए बनासकांठा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़ी चेक पोस्टों पर सघन पुलिस चेकिंग शुरू कर दी गई है। बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक द्वारा 31 दिसंबर को लेकर विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है। पुलिस किस प्रकार की रणनीति के तहत चेकिंग करेगी और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर बनासकांठा के एसपी प्रशांत सुंबे ने मीडिया से बातचीत की। प्रशांत सुंबे, एसपी बनासकांठा पुलिस। बनासकांठा जिले में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ी कुल 7 चेक पोस्टों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए सघन वाहन चेकिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। नमस्कार, હું પ્રશાંત સુંબે, પોલીસ અધિક્ષક બનાસકાંઠા। બનાસકાંઠા જિલ્લો ગુજરાત રાજસ્થાનના આંતરરાજ્ય સીમા ઉપરનો જિલ્લો છે। તે ધ્યાને રાખીને આને આવતીકાલે આવનાર 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણીના ભાગરૂપે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ તરફથી જે સુરક્ષા કાયદા વ્યવસ્થા માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે, તેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે 7 કાયમી આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ છે, તેના સિવાય વધુ 30થી વધુ આંતરરાજ્ય તેમજ આંતરિક જિલ્લા આંતરિક ચેકપોસ્ટ ચેકનાકા ઊભો કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આજથી ચેકિંગ શરૂ કરવા દેવામાં આવેલ છે। આ ચેકપોસ્ટ ઉપર પૂરતા માત્રામાં અધિકારી અને કર્મચારીનો બંદોબસ્ત છે। બનાસકાંઠા જિલ્લા માટે ગુજરાત પોલીસ તરફથી એસઆરપીએફની એક કંપની પણ ફાળવવામાં આવેલ છે। તે કંપનીનો બંદોબસ્ત રાઉન્ડ ધ ક્લોક આ ચેકપોસ્ટ ઉપર શરૂ છે। આના સિવાય 30 અને 31ના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના 50થી વધુ અધિકારી અને 500થી વધુ કર્મચારી બંદોબસ્તમાં રહેશે। જુદા જુદા જગ્યા ઉપર વ્હીકલ ચેકિંગ, નાકા પોઈન્ટ્સ અને જે ભીડવાળી અથવા અવર જગ્યા હોય તે ઉપર પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવશે। જિલ્લામાં જે પાર્ટી પ્લોટ્સ, હોટેલ્સ અથવા ફાર્મ હાઉસીસ છે, જેના ઉપર આયોજન થવાની શક્યતા છે, તેઓની સાથે પણ મિટિંગ શરૂ છે। તેઓની પરમિશન લેવાની પણ સૂચના આપી દીધેલ છે, આપવામાં આવનાર છે અને કોઈ પણ જગ્યા કોઈ પણ ગુનાહિત અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ના હોય તે માટે બનાસકાંઠા પોલીસ તરફથી પૂરતો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે। આના સિવાય 2 દિવસ માટે વ્હીકલ ચેકિંગ, હોટેલ ચેકિંગ પણ કરવામાં આવશે, જેમાં પ્રતિક સોફ્ટવેર હોય અથવા બાકી બોડી ઓન કેમેરા હોય તે પ્રમાણે ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને મને વિશ્વાસ છે કે બહુ શાંતિ અને સુવ્યવસ્થાના વાતાવરણમાં 31 ડિસેમ્બર આની નવા વર્ષની ઉજવણી પૂર્ણ થશે। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। बनासकांठा से जोरा सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। पालनपुर के चित्रासणी के पास देर रात एक लग्जरी बस पलट गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर से गोवा जा रही एक निजी लग्जरी बस पालनपुर के चित्रासणी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई। बताया जा रहा है कि बस चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण ये हादसा हुआ। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 4-5 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही तालुका पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि अरावली को खत्म किया जा रहा है? क्या आप भी उस फर्जी सेव अरावली कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं जिसे कुछ विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति के लिए हवा दे रही हैं? मगर 24 दिसंबर 2025 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरी अरावली रेंज में न्यू माइनिंग लीज पर परमानेंट बैन लगा दिया गया है, यानी दिल्ली से गुजरात तक अब कोई माइनिंग माफिया अरावली से एक कंकड़ भी नहीं निकाल पाएगा। आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि कैसे कुछ लोग फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और मोदी सरकार असल में अरावली को बचाने के लिए कितनी समर्पित है। पहला प्रोपेगेंडा, 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को सरकार ने माइनिंग के लिए छोड़ दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है सिर्फ 0.19% क्षेत्र ही माइनिंग के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, ICFR होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। यानी कि 99.81% अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षा जड़ से है, सिर्फ चोटी से नहीं। दूसरा प्रोपेगेंडा, सरकार अरावली को नष्ट करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक है। उल्टा प्रोटेक्टेड जोन को और बढ़ाया गया है। तीसरा प्रोपेगेंडा, 100 मीटर नियम अरावली का डेथ वारंट है, मगर ये एक वैज्ञानिक स्टैंडर्ड है ताकि कोई राज्य ये न कह सके कि हमारे यहाँ अरावली है ही नहीं। अब पूरे क्षेत्र को एक जैसी सुरक्षा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा, तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है, लेकिन उसकी जो नीचे जड़े जहां तक है, जहां तक उसका है, वो पूरा 100। चौथा प्रोपेगेंडा, ग्राउंड वाटर खत्म, रेगिस्तान बढ़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और नया नोटिफिकेशन अरावली को एक जुड़ी हुई जियोलॉजिकल रिज मानकर बचाने के लिए पहाड़ नहीं टूटेंगे तो वाटर डिस्चार्ज भी रहेगा और रेगिस्तान भी रुकेगा। तो अगली बार जब आप सेव अरावली के नाम पर कोई फेक नैरेटिव देखें तो ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है, इसलिए सच का साथ दीजिए, झूठे प्रोपेगेंडा का नहीं। वो इस समय राजस्थान में काफी चर्चाओं में है, क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो एक जजमेंट जो आया है, और उसमें जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी पूरी जो ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं, उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। एक तरीके से बहुत पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। आज अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो लगभग पूरा राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय हो जाता। आज के समय में हर एक तमाम जितने भी पर्यावरणीय संतुलन है उनमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अरावली पर्वतमाला की है। आज जो भी साथी जो इसके लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में हैं और निश्चित रूप से सरकार को पैरवी करनी चाहिए और ये जो जजमेंट है इसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। बीजेपी से बात हुई, उनका ये कहना है कि कोर्ट का आदेश है, हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया गया, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की बात को मजबूती के साथ में कोर्ट के सामने रखे और अपना पक्ष और जनता का पक्ष मजबूती से रखने का जो काम है वो सरकार का है। आज के समय में जहां रायसेना हिल पे जहां राष्ट्रपति भवन और संसद जो बने हैं वो भी इसी अरावली पर्वतमाला पे बने हैं। अगर इस तरीके से सब चीजें खोद खोद के कर दिया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा और ये पूरा सिस्टम पहले से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के क्या हाल है। आज हवा वहां पे इस तरीके की है कि हवा के अंदर जहर है और अगर ये अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी तो आने वाले समय में यही हाल राजस्थान के हो जाएंगे। आप पहले ओरण गोचर आपने खत्म कर दी, खिजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या है?
एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया। हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना प्रतिशत नुकसान होना है अरावली को इससे अगर ये होती है चीजें, और उसके बाद में मानसून और बाकी चीजों पे राजस्थान में क्या किस तरह का असर पड़ेगा? आप देखेंगे कि मानसून पूरे तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आप आज के समय में अगर आप भूजल का संरक्षण की अगर मैं बात करूं या इकोसिस्टम की बात करूं, अगर 100 मीटर से कम की पहाड़ियां अगर काउंट करें तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम में आती है, और इस तरीके से लगभग 80 से 90% तक अरावली जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, और इसका जो बड़ा इफेक्ट जो है वो पर्यावरणीय संतुलन और इकोसिस्टम पे रहेगा। रेगिस्तान बढ़ेगा राजस्थान में अगर इस तरह से हो जाता है? बिल्कुल पूरे तरीके से बढ़ेगा। अरावली जो है वो रेगिस्तान को और मरुस्थलीय तमाम चीजों को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, और साथ ही साथ अगर इस तरीके से अरावली खत्म होती है तो निश्चित रूप से इसका एक विषम परिणाम जो है वो हम सभी को। आपकी तरफ से एक बार बता दीजिए कैसे विरोध जताएंगे, कैसे क्या करेंगे अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है? हर तरीके से विरोध जताएंगे, और निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। भाटी जी, एक तरफ तो क्या है कि हम गुरु शिखर की बात करते हैं, उसी गुरु शिखर को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि सरकार अपने खनन जो पट्टे दे रही है उनमें कई बार घोटाले भी पकड़े गए हैं, तो क्या लगता है धीरे धीरे जो देखिए ये माफिया को बढ़ाने के लिए सीधा रेड कारपेट बिछाया गया है, और चंद लोगों को फायदा देने के लिए ऐसे डिसीजंस आए, और इसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश को आप देखेंगे कि गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक के तमाम प्रदेशों को इन तमाम चीजों का जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो विधानसभा में आप इसका निश्चित रूप से उठाएंगे, और मेरा तो राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से निवेदन कि इस बारे में सोचें और अपना पक्ष जो है, जनता का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ में रखें। क्या कोर्ट में भी लेके जाएंगे? निश्चित रूप से जरूरत रहे तो वहां पे भी जाएंगे। 2 साल के कार्यकाल पे विधायकों की घुसकांड पे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। ज्ञानेंद्र इंदौरकर ब्यूरो चीफ के साथ असलेखा चौरसिया की खास खबर। मोहखेड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अवैध शराब के अड्डों पर आबकारी की दबिश, चालू भट्टियों को किया गया नष्ट। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त श्री BR वैद्य के मार्गदर्शन में शहर के आबकारी अमले द्वारा शुक्रवार को सुबह और दोपहर के वक्त विकासखंड मोहखेड़ क्षेत्र के ग्राम नरसला, सिंहपुर और मोरदेई में जंगल में बहने वाले नालों के किनारे भारी मात्रा में प्लास्टिक की कैन और रबर के ट्यूबों में भरा महुआ लहान आबकारी दल द्वारा बरामद किया गया, जिसे विधिवत नष्ट किया गया। इन्हीं स्थानों पर चालू भट्टियां भी टीम को मिली, जिन्हें तोड़ दिया गया। मौके पर रबर के ट्यूब बरामद अवैध हाथ भट्टी मदिरा को आबकारी द्वारा कब्जे में लिया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कुल 05 प्रकरण दर्ज कर 1800 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। साथ ही 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा आबकारी द्वारा कब्जे में ली गई। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। दांतीवाड़ा से सुरेश भाई रावल की विशेष रिपोर्ट। रामनगर में दरबार समाज के डॉक्टरों, वकीलों व मेधावी विद्यार्थियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित। बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका के रामनगर में वाधेला जागीरदार विकास ट्रस्ट एवं रामनगर ग्राम के संयुक्त तत्वावधान में दरबार समाज के डॉक्टरों, वकीलों तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के मेधावी प्रतिभाओं को शील्ड एवं सम्मान पत्र प्रदान कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बनास मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन PJ चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसा तालुका भाजपा अध्यक्ष एवं जागीरदार समाज के अध्यक्ष बहादुर सिंह वाधेला ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में पूर्व जिला भाजपा महामंत्री भारत सिंह भटेसरिया उपस्थित रहे। अतिथियों ने मंच से संबोधन करते हुए दरबार समाज के शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े रहने पर चिंता व्यक्त की और समाज से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। वक्ताओं ने दानदाताओं के सहयोग से शैक्षणिक परिसरों एवं शिक्षा से जुड़े संसाधनों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मजबूत आधार है।
कार्यक्रम के दौरान दानदाताओं ने शिक्षा के उत्थान हेतु उदारतापूर्वक दान देकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में रामनगर के ग्राम वासियों, वाधेला जागीरदार विकास ट्रस्ट के सदस्यों तथा समाज के युवाओं ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कड़ी मेहनत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे, जिससे आयोजन ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बन गया। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। राह से दशरथ भाई ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। राह तहसील के लुवाणा कलश गांव में कलेश्वर मैया धाम पर एक शाम गौ मैया के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित। राह तहसील के लुवाणा कलश गांव स्थित कलेश्वर माताजी के धाम पर मार्गशीर्ष वद सप्तमी गुरुवार के पावन अवसर पर एक शाम गौ मैया के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कलेश्वर जीव सेवा ट्रस्ट लुवाणा कलश के तत्वावधान में संपन्न हुआ। लुवाणा कलश की पावन धरती पर कलेश्वर माताजी की सानिध्य में तथा जगदम्बा के आशीर्वाद से आयोजित इस भजन संध्या के अवसर पर भव्य संतवाणी कार्यक्रम भी रखा गया। इस विशाल आयोजन में गांव के छोटे बड़े, युवा, बुजुर्ग, सभी समाजों के लोग, मातृशक्ति, आसपास के गांवों से आए गौ भक्त एवं सनातन धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गांव की गोसेवा में वर्षों से निस्वार्थ भाव से लगे कलेश्वर माताजी मंदिर के पुजारी, गौभक्त एवं हनुमान जी के उपासक भाई श्री नरसी एच दवे, विष्णु भाई दवे, वालजी भाई नाई, दीपा भाई तरक सहित उनकी टीम द्वारा लंबे समय से गायों की सेवा की जा रही है। इस पुनित कार्य में राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेश भाई लोहार, सुरेंद्र सिंह राजपूत तथा गुजरात की प्रसिद्ध भजन गायिका रेखाबेन माली, साहित्यकार चेतन सिंह उटवेलिया ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बजरंग म्यूजिकल ग्रुप, गेला सहदेव भाई, जय गोगा साउंड, धर्नोधर परेश सुथार, कलेश्वर मंडप लुवाणा तथा माधव स्टूडियो राह का विशेष सहयोग रहा। पिछले कई वर्षों से ये आयोजन निरंतर किया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्रामजनों का सहयोग रहता है। इस अवसर पर गायों के लिए दान स्वरूप चारा, नकद राशि, कतर एवं गुड़ आदि भी एकत्र किया गया। भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच गेनाजी करवड़, पूर्व सरपंच अनाजी वाधेला, डेयरी मंत्री जीटी पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के रॉबिन हुड कहे जाने वाले बलवंत सिंह बाखासर की। 1971 के वीर योद्धा बलवंत सिंह की प्रतिमा अनावरण को तैयार, दिखाएगी शौर्य का इतिहास। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के बाखासर गांव में स्थापित हो रही वीर योद्धा ठाकुर बलवंत सिंह की घुड़सवार प्रतिमा अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुए मिशन छाछरो रेड की अदम्य वीरता का प्रतीक है। युद्ध के दौरान 10 पैरा कमांडो के ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह के नेतृत्व में जब भारतीय सेना दुश्मन क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, तब बलवंत सिंह ने सीमावर्ती इलाकों की अपनी गहरी समझ के आधार पर हाथ उठाकर दुश्मन के इलाके का सही मार्ग दिखाया था। उसी ऐतिहासिक क्षण को प्रतिमा में बखूबी दर्शाया गया है, जहां वे घोड़े पर सवार होकर साहसपूर्ण अंदाज में सीमा की दिशा इंगित करते दिखाई देते हैं। ये जीवंत प्रतिमा वीरता, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक मानी जा रही है। बाखासर में इसका अनावरण 13 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिससे ये आयोजन और भी ऐतिहासिक बन जाएगा। बलवंत सिंह की विरासत बताती है कि शौर्य सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से इतिहास बनाता है। ऐसे ही वीर राष्ट्र की सीमाओं की ढाल बनते हैं, जिनके इरादे हर चुनौती से आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। अमीरगढ़ से सुरेश भाई रावल की विशेष रिपोर्ट। बनासकांठा, वन विभाग की उदासीनता से अधूरा पड़ा सड़क निर्माण, ग्रामीणों को भारी परेशानी। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तालुका स्थित खारा गांव से मालपुरिया डेरी सहित करीब 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य वन विभाग की उदासीनता के कारण लंबे समय से रुका हुआ है। सड़क अधूरी रहने से आसपास के गांवों के लोगों को रोजाना आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मार्ग से दूध परिवहन, कृषि उपज की ढुलाई और आम नागरिकों का आवागमन होता है। सड़क निर्माण रुकने से न केवल समय और धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि विद्यार्थियों, मरीजों और किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
खारा गांव के सरपंच ने इस गंभीर समस्या को लेकर वन मंत्री के समक्ष मांग रखी है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है और कहा है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। खारा गामनो हाल चालू सरपंच छूं અને અગાઉ પણ 2007માં હું ચૂંટાયેલો હતો, આ બીજી વખત આવ્યો છું અને ખારાથી વાવદરા રોડ આશરે 25-30 વર્ષથી અમારી રજૂઆતો છતાં હજુ સુધી થયો નથી। થોડાક સમય પહેલા કામ ચાલુ થયું હતું પણ ફોરેસ્ટ ખાતાએ હવે અટકાયું છે। એમાં 2 હેક્ટર જમીન ફોરેસ્ટ ખાતાને ફાળવવાની વાત છે અને એની વિધિ અમે બધી કરી નાખી હતી। ફાઇલ છે ગાંધીનગર જઈને પરત આવી છે અને હાલ વસઈ દેવડીમાં કંઈક આપવાની વાત ચાલુ છે અને પ્રાંત ઓફિસમાં અમારી ફાઇલ પડી જ છે હાલ દોતા ને એની વારંવાર ભલામણો અમે કરી છે। આના માટે અમે જિલ્લા પ્રમુખશ્રીને રજૂઆત કરી હતી, કલેક્ટર સાહેબને 2-3 વાર મળ્યા, પ્રાંત સાહેબને મળ્યા, એના સિવાય રાજકીય આગેવાનોને મળ્યા તે એ લોકોએ રજૂઆત કરી હતી। આપણા જિલ્લા પ્રમુખ એમને બળવંતસિંહને પત્ર લખ્યો હતો, મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો અને વન મંત્રીને પણ પત્ર લખ્યો હતો, બરાબર। એની ફાઇલ હવે પાછી જઈને એની પૂર્તતા માટે દોતામાં આવેલી છે પણ હજુ સુધી કામ થયું નથી। એટલે માનનીય વન મંત્રી આપણા નવા જે આવ્યા છે પ્રવીણભાઈ માળી સાહેબને નમ્ર વિનંતી, આ રોડ 25 થી 30 ગામોને જોડતો રોડ છે અને મેં બધી રજૂઆતો આજુબાજુના 50 સરપંચોના લેટર લીધા છે, એની ફાઇલ મારી જોડે તૈયાર છે। આ સિવાય બીજા ભલામણ પત્રો હતા એ બધા મારી જોડે તૈયાર છે। પ્રવીણભાઈ માળી સાહેબને રસ લઈને આટલું થોડું જંગલ ખાતાનું જે અટકે છે એ પૂરું કરાવે। આ રોડ નથી બનતો એના લીધે જે બહેનો છે આપણે પ્રેગ્નેન્ટ બહેનો છે અથવા આવવા જવા માટે આજુબાજુ 50 ગામોને જોડતો રોડ છે પણ હજુ સુધી આ થયો નથી। તો માનનીય સાહેબને મંત્રી સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે આ રોડ જલ્દીથી પૂર્ણ કરાવે। ગામ ખારાનો વતની છું, વાછોલા હસનભાઈ ખુમાજી। અમારા ગામ ખારાથી માલપુરિયા જવા માટે રસ્તાની ખૂબ મુશ્કેલી છે। એ રસ્તાની સંભારણ કરવા સરકાર તથા જે તે આગળ પડતા નેતાઓને અમારી ખૂબ નરમ વિનંતી છે। આ રોડ કયા કયા ગામોને જોડે છે? આ ગામ ખારાથી દેરી, માલપુરિયા, અઢવા, રાજકોટ, પોથાવાડા, ધાનેરા, દાંતીવાડા, આ દરેક ગામને લાગુ પડતો રસ્તો છે। કયા કારણસર આ રોડનું કામ થતું નથી? આ મેટલ કામ બનેલું છે વર્ષો પહેલા પણ હજી એનો કોઈ અંત આવતો નથી। કોઈ સરકાર ધ્યાન આપે છે કે નહીં આપતો એ મને માલુમ નથી। અને ડિલિવરી પ્રસંગે તકલીફ? ડિલિવરી પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ તકલીફ પડે। પેલી મોડથી આવવાની તકલીફ, અમારે જવાની બી તકલીફ, હગાવાલે જવું હોય તો ટાઈમસર પહોંચાતું નથી। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। दांतीवाड़ा से सुरेश भाई रावल की विशेष रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान में बीएसएफ की बड़ी पहल, दांतीवाड़ा में चला सफाई अभियान। देश भर में मनाए जा रहे स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर बीएसएफ की 21वीं बटालियन दांतीवाड़ा मुख्यालय जिला बनासकांठा द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कमांडेंट जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ जवानों ने दांतीवाड़ा बीएसएफ कैंपस, कॉलोनी, मेन मार्केट और सार्वजनिक सड़कों पर सफाई कार्य किया। अभियान में 2YC मनोज कुमार राणा, डिप्टी कमांडेंट अमरजीत सिंह राणा राज सिंह, डॉक्टर मुस्तफा इकराम, राज सिंह मीणा सहित कई अधिकारी व जवान सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही दांतीवाड़ा सरपंच, स्थानीय अग्रणी जन तथा नागरिकों ने भी स्वेच्छा से जुड़कर अभियान की सफलता बढ़ाई। इस दौरान 10 ट्रॉली से अधिक कचरा एकत्र कर बस स्टैंड सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ व गंदगी रहित बनाया गया। नमस्कार, मैं मनोज कुमार राणा, डिप्टी कमांडेंट अधिकारी 21वीं बटालियन बीएसएफ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी है। इसका नेतृत्व हमारे कमांडेंट श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने किया है और हमारे यहाँ जितने भी गांव वाले और मार्केट एरिया वाले हैं, लोग हैं, निवासी हैं, उन सबके सहयोग की मदद से और 21 बटालियन के कार्मिकों की मदद से हमने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसमें हम पूरे एरिया की क्लीननेस, मार्केट एरिया क्लीननेस कर रहे हैं और ये पखवाड़ा जो है हमारा एक
तारीख से शुरू हुआ था दिसंबर महीने में, और ये 15 दिसंबर तक हमारा चलेगा, जिसमें हम जगह जगह पर हमने सफाई अभियान और जागरूकता अभियान चलाए हैं। और इसकी शुरुआत जो हमारे स्वच्छता अभियान के एक फ्लैग के रूप में करी गई थी, और उसकी समाप्ति हम 15 तारीख को करेंगे। और ये अभियान पूरे वर्ष में हम चलाते रहते हैं, और इससे जागरूकता जो है कार्मिकों में और जो स्थानीय निवासी हैं उनमें जागरूकता काफी ज्यादा फैली गई है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज, बागोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बागोड़ा पुलिस ने गांव देवदा के एक बंद पड़े मकान में हुई 70-80 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भरत कुमार बाबूलाल पुरोहित, निवासी खिरोड़ी, थाना झाब। मदन सिंह जवाहर सिंह पुरोहित, निवासी मांदड़ी, थाना अहोर। एक बाल अपचारी को भी किया गया निरुद्ध। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया, जिससे क्षेत्र में राहत का माहौल है। अगर चाहें तो मैं इसे बेहतर हेडलाइन, छोटा अपडेट या वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी तैयार कर दूं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। आबू रोड रीको क्षेत्र में मोबाइल लूट और मारपीट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आबू रोड रीको क्षेत्र में मजदूर पर हुए मोबाइल लूट और मारपीट प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों अशोक कुमार, मीठाराम उर्फ मीठा और तेजराज उर्फ नरेश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मजदूर ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर पत्थर से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। गिरफ्तारी के बाद रीको पुलिस ने पूरे क्षेत्र में बदमाशों की परेड निकालकर सख्त संदेश दिया, जिससे इलाके के असामाजिक तत्वों में खौफ देखा जा रहा है। इस निर्णायक और तेज कार्रवाई की शहरवासी खुलकर सराहना कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज। बनासकांठा से सुरेश रावल की विशेष रिपोर्ट। गुजरात के महेंद्र भाई पुरोहित को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 से सम्मानित। बनासकांठा जिले के धानेरा तालुका के धरनोधर गांव के मूल निवासी तथा वर्तमान में गांधीनगर स्थित गुजरात पुलिस भवन डीजीपी कार्यालय में पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मी महेंद्र भाई भूराजी पुरोहित को गुजरात पुलिस में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आज गांधीनगर पुलिस एकेडमी में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय डीजीपी गुजरात के हाथों महेंद्र भाई पुरोहित को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य पुलिस में विशेष व उत्कृष्ट योगदान के आधार पर दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए इस वर्ष कुल 110 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। इस सूची में बनासकांठा जिले के महेंद्र भाई का नाम शामिल होने से जिले में तथा गांधीनगर डीजीपी कार्यालय में गर्व और खुशी का माहौल देखने को मिला। महेंद्र भाई ने अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण, ईमानदारी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करके पुलिस विभाग में एक विशेष पहचान बनाई है। राज्य के पुलिस प्रमुख ने उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को ये सम्मान देकर मान्यता प्रदान की, जिससे साथियों और स्थानीय लोगों में भी हर्ष की लहर दौड़ गई है। ये सम्मान बनासकांठा जिले के गौरव में वृद्धि करता है तथा युवा पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरता है। महेंद्र भाई की इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों द्वारा ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रवि न्यूज में। दांतीवाड़ा से सुरेश रावल की विशेष रिपोर्ट। बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा गांव एवं दरबारगढ़ के पास स्थित बीएसएफ की फायरिंग रेंज को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सरकारी हथियारों से प्रशिक्षण के दौरान चलाई जा रही गोलियां फायरिंग रेंज के पत्थरों से टकराकर रिकोशेट हो रही हैं, जो करीब 2 किलोमीटर दूर दरबारगढ़ के खेतों तक पहुंच रही हैं। तेज रफ्तार से आती इन गोलियों से तबेले और पटरा वाले मकानों को नुकसान पहुंचाने की आशंका के चलते लोग भय के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। इस गंभीर मामले की जानकारी ग्राम सरपंच ईश्वर भाई परमार द्वारा बीएसएफ की इंटेलिजेंस शाखा को दी गई। सूचना मिलते ही बीएसएफ इंटेलिजेंस के डीसीजी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायरिंग रेंज के साथ साथ प्रभावित किसानों के खेतों का निरीक्षण कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की दांतीवाड़ा फायरिंग रेंज पर बीएसएफ, पुलिस, एसआरपीएफ मेहसाना, ओएनजीसी, फॉरेस्ट विभाग सहित विभिन्न कंपनियों के जवानों को एलएमजी और 9mm पिस्टल जैसे हथियारों की जांच और प्रशिक्षण बीएसएफ के निर्धारित एसओपी के तहत दिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम सरपंच ईश्वर भाई परमार ने मांग की है कि जिस तरह राजकोट, पाटन और साबरकांठा में फायरिंग रेंज के आसपास सुरक्षा के लिए बफर वॉल बनाई गई है,
उसी तरह दांतीवाड़ा फायरिंग रेंज के चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवार बफर रेंज का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीणों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मारा गाम ने अंदर ये गोली छूटी से पुलिस ने SRP ने BSF ने ગામને કોઈ ખેડૂતને નુકસાન ના થાય એ જાણે કાયદેસર વ્યવસ્થા કરવી, કાયદેસર વ્યવસ્થા કરી ખેડૂતોને જાનહાનિને માનવ નુકસાન થાય એ ના થવું જોઈએ એના માટે કોઈ કાયદેસર વ્યવસ્થા બીજી કે અન્ય જગ્યાએ કરવી. આ ગોળીઓને કારણે કેવું નુકસાન થાય છે? ગોળીના કારણે પશુને નુકસાન થાય છે, છોકરીને નુકસાન થાય છે. અને અમુક કામી ખેડૂત હોય એમને કદાચ લાગી જાય તો નુકસાન ભરપાઈ કોણ કરશે? અગાઉ કોઈ બનાવ બનેલો છે? અગાઉ બનાવ તુલસીની દીકરી 2020માં બનેલો હતો. એને નામ તો હવે નહીં આપું. સરકારશ્રીને મારે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આવી આ ફાયરિંગ રેન્જ છે ત્યાંથી ગોળી ન છૂટવી જોઈએ, કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને ગામની અંદર કોઈ નુકસાન ના પહોંચે ઢોરને, બાળકોને, પશુઓને અને વ્યક્તિ. અમુક ખેડૂત છે, ગરીબ લોકો હોય છે એટલે માટે એટલે અમુક ફરતા કદાચ ફાયરિંગ ગોળી છૂટી જાય કદાચ નુકસાન થાય એના માટે કાયદેસર કાર્યવાહી એ લોકોને કરવી જોઈએ. આજે ફાયરિંગ કરવામાં આવે છે કયા કયા વિભાગ અને કયા કયા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે? ફાયરિંગ તો BSF દ્વારા તો કરવામાં આવે છે, SRP આવે છે, પોલીસ આવે છે, બનાસકાંઠા પોલીસ. આજે ફાયરિંગ કરવામાં આવે છે. આ ફાયરિંગની જે ગોળીઓ ખેડૂતોના ખેતર સુધી આવે છે, એમના ઘરોના મકાનના પતરા સુધી આવે છે. તો આ બંધ કરવા અને કંઈક અલગથી વ્યવસ્થા કરવા માટે પોલીસને કોઈ રજૂઆત કરેલ છે ખરા? આપણે રજૂઆત કરશું. ફાયરિંગની ગોળી જે આવે છે તો આપણે BSF રેન્જ છે, BSF દાંતીવાડા BSF રેન્જ છે. પોલીસને બીજે કોઈ વ્યવસ્થા બીજે કોઈ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જે અહીંયા શું છે કારણ પેલા અમે પરમ દિવસ આવ્યા ત્યાં કે BSFની ગોળી આવતી નથી, અન્ય જગ્યાની ગોળી આવે છે. એ બીજે વ્યવસ્થા કરે ને.